چین اور پاکستان کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم، سیکیورٹی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنائیں گے۔ دونوں ممالک کا جوائنٹ ایکشن پلان تیار۔ سرمایہ کاری میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ چین پاکستان کی مالی معاونت کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب لی چانگ سے ملاقات۔ سی پیک فیز 2 کے مشترکہ حکمت عملی پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ 5 نئے کوریڈورز کی ترقی پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اصلاحاتی کوششوں کی کامیابی چین کے تعاون سے ہی ممکن ہوئی۔ جلد چینی مارکیٹ میں پانڈا بانڈز متعارف کروائیں گے۔ بیجنگ سرمایہ کاری کانفرنس میں 300 پاکستانی اور 500 چینی کمپنیز کی شرکت کا اعلان۔ وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں سی پیک فیز 2، سائنس اور ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیا اور زراعت میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ شایان شان طریقے سے منانے کا اعلان۔ چینی وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے وزیر صنعت آئی ٹی لی چیانگ کی ملاقات بھی ہوئی۔ صنعت، زراعت، تجارت، آئی ٹی، کانکنی اور معدنیات میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، کہا کہ آج ہم سی پیک 2 کی لانچنگ کے لیے تیار ہیں۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ بزنس ٹو بزنس کانفرنس دو طرفہ مضبوطی کی عکاس ہے۔ چین نے سی پیک کے تحت 35 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی۔ چین کے تعاون سے اورنج ٹرین اور مختلف ڈیمز کی تعمیر ہوئی۔ سی پیک کی بدولت پاکستان میں 3 سال میں توانائی بحران پر قابو پا لیا۔ زراعت اور صنعت بحال ہوئی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں 21 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تحت 4.2 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی۔ گجرات میں بادل برسے 1 روز گزر گیا۔ شہر کے مختلف مقامات سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ سیلاب نے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھا دی۔ پپری لہروں سے مدینہ سیدہ میں ڈی سی حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ شہر کئی فٹ پانی میں ڈوب گیا۔ ظہور الہی اسٹیڈیم سمیت اہم علاقے 3 فٹ پانی میں۔ سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ جیل، سرکاری دفاتر میں بھی پانی داخل۔ گجرات جیل سے کئی قیدی لاہور اور گوجرانوالہ منتقل۔ پانی میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے کشتیوں کا استعمال۔ ماجرا پولی سے نالا بھنڈر تک 1.5 کلومیٹر طویل خندق کھود کر پانی کی نکاسی کی کوشش۔ پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے ملہو کوکھر کی طرف بھی خندق کھودی گئی۔ تعلیمی ادارے آج بھی بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت کا شہر میں سیلابی صورتحال کا نوٹس، ہنگامی بنیادوں پر نکاسیاب کے لیے 1 کلومیٹر عارضی برساتی نالے کی تعمیر کا آغاز۔ شہریوں کا غفلت کے مرتکب سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پانی اتنا گجرات میں ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، صرف نیوز پہ دیکھا تھا سیلاب کا، اور لیکن گجرات کے شہری اس ٹائم بہت ہی مشکلات میں ہیں، اور پانی بڑھتا جا رہا ہے کافی، اور اس ٹائم شاپ پہ بھی جانا مشکل ہے۔ بھارت آبی جارحیت سے باز نہیں آیا۔ مسلسل تیسرے دن دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ ہنگامی الرٹ جاری۔ ہیڈ خان کی، ہیڈ قادرآباد، چنیوٹ میں سیلابی صورتحال۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ قصور کے قریب 18 بستیاں زیر آب آ گئیں۔ کمال پورہ بستی میں 7 سے 8 فٹ پانی موجود۔ شہریوں کی مال مویشیوں کے ساتھ محفوظ مقامات پر نقل مکانی۔ دریائے چناب کی بپھری لہروں سے تباہی۔ ملتان میں سیلابی صورتحال سنگین۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی نے شیرشاہ کی بستیوں کو ڈبو دیا۔ مظفر گڑھ روڈ کے دونوں اطراف پانی۔ چناب پل پر ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شجاع آباد میں شیرشاہ کے قریب بستی گاگرا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ 200 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی قریبی بستیوں میں داخل۔ بستیوں میں ہزاروں افراد پھنس گئے۔ متاثرین کا ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ اونچ شریف میں بھی صورتحال خراب۔ درجنوں مکان اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں ڈوب گئیں۔ شہر سلطان میں پانی عبداللہ شاہ سپورٹس کمپلیکس میں داخل۔ جلال پور بھٹیاں کے سینکڑوں دیہات سیلابی پانی کے لپیٹ میں آ گئے۔ براج پر دباؤ بڑھنے سے انتظامیہ نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند۔ قصور میں کیکر پوسٹ پر پانی کی سطح 23.9 فٹ تک جا پہنچی۔ ساندہ نظام کے فاسدی بند سے پانی رسنے لگا ہے۔ بھاری مشینری سے بند کو بچانے کا کام جاری۔ بہاڑی کے مقام پر دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام پر درمیانی اور جملیرہ میں اونچے درجے کا سیلاب۔
मिंचनाबाद में भी बहाव में मुसलसल इजाफा, सैलाबी रैले ने मजीद देहात को लपेट में ले लिया। लोग नकल मकानी पर मजबूर। बहावन नगर के करीब दरियाए सतलुज में तुगयानी से सेम नाले का बंद टूट गया। बस्ती बहावन शाह, आबादी कादरी मिल, कमरदीन, बोतला समेत कई इलाके डूब गए। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बाबा फरीद पुल और भूखा पतन पुल के नीचे भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम, मकीनों को फौरी नकल मकानी की हिदायत। दरियाए रावी में दूसरे सैलाबी रेले से शकरगढ़ में तबाही। मंडी खेल के करीब नारोवाल रोड पर 2 फीट से जायद पानी। सातुवाल, अली लंगा, कतरवाल समेत 20 देहात ज़ेर-ए-आब। जस्सर के मकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसेक हो गया। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रेला करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बहा कर ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राबिता मुनक़ता। कबीरवाला के मकाम पर भी रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सदनाई पुल मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खुले आसमान तले हैं, हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारे इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिल रही है, सो डंगरन पा देवी है या बच्चन खिला देइए। काल दे लेके चले गए ना, अभी तक काश ही नहीं मिली सानू। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਕਾਨ ਹੀ ਗਿਰ गए इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। दरिया रावी से मुल्हिका आबादियों के सिलाब मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आरजी पनाह गाँव में सहूलियात के फकदान का शिकवा। कहते हैं रिलीफ कैंपों पर अमला तो मौजूद है लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही हैं। मुतासरीन की सूबाई हुकूमत से नुकसानात का तखमीना लगाकर जल्द अज जल्द इमदादी रकूम देने की अपील। पंजाब में सैलाब से जानी नुकसान, हलाकतें बढ़कर 46 हो गईं। 3,944 इलाके और 35 लाख अफराद मुतासर। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया कहते हैं कि हेड मोहम्मद वाला पर खतरे की कोई बात नहीं, सूरत हाल कंट्रोल में है। उम्मीद है शिगाफ नहीं डालना पड़ेगा। शादरा के मकाम पर दरिया रावी में पानी का बहाव बढ़ा है। दरिया रावी में हेड सदनाई पर पानी का दबाव मौजूद है। जब तक चिनाब में पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक रावी का पानी चिनाब में शामिल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चोंग में फ्लड कैंप का दौरा। वज़ीर आला को रिलीफ कैंप्स में इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग। बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल भी मुकम्मल फ़ौल है। आरसी क्लासरूम में भी गई, बच्चों से बातचीत भी की और तहाइफ़ी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड कैंप में मौजूद ख़वातीन से भी मुलाकात की। मरीम नवाज का बीमार ख़वातीन के लिए अद्वियात की फ़ौरी फराहमी का हुक्म। वज़ीर आला की कैंप में मौजूद नौजवानों से भी बातचीत। एक नौजवान की कमीज़ पर दस्तखत भी किए। कहा कि मेरा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रखा था। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर क़यादत ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो कसूर का दौरा करेंगे। चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। दौरा पंजाब के बाद सखर भी जाएंगे। सखर, बैराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की नवाब शाह अहमद दरिया सिंध के बंदों का मुआयना किया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सकरंड के करीब मड बचाओ बंद, आमरी पुल और SM बचाओ बंद का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात, मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सिंध के दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घुटू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक तक पहुंच गई।
अगले 24 घंटों में बहाव 4 लाख क्यूसेक होने का इम्कान। सखर बैराज पर पानी की सतह 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे अहम। ठट्ठा और सजावल के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। नवाबशाह में सकरंड और आमरी पुल के करीब सैलाबी पानी में इजाफा। कच्चे के इलाके ज़ेर आब आने से मुतादिद देहात मुतासिर। बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मजीद देहात से इनखला जारी। इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने की सारी तैयारी कर ली है। सिंध हुकूमत ने NDMA और वफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात अभी इतने ख़राब नहीं हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अगर हालात ख़राब हुए तो वफाक से बात कर लेंगे। हमें सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। अब हमें अपनी सोच को तब्दील और मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबा बंदी करना होगी। कालाबाग डैम के हवाले से बयान अली अमीन की ज़ाती राय है। उनकी जमात भी बयान को नहीं मान रही, तो हम क्यों अहमियत दें। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पाक फौज भी तैयार। पाक फौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ पुरखतर इलाकों में तैनात। पाक फौज के अफसर और जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान हिफाजती बंदों की मुरम्मत करने वाले महकमा आपाशी के अमले की हिफाजत पर मामूर। कच्चे के इलाके से इनखला के लिए लोगों की मदद का सिलसिला भी जारी। पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की काविशों को इलाका मकीनों की जानिब से पजीराई की। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट जारी। गिलगित के जिला दारेल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मूजो रेला दर्जनों घरों को बहा कर ले गया। बड़ी तादाद में माल मवेशी भी पानी के नजर हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दारेल में खड़ी फसलों और ज़री राजी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला की हिदायत पर इमदादी टीमें दारेल भिजवा दी गई हैं। 365 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों से लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। नारोवाल, कसूर, झंग समेत हर सैलाब मुतासरा इलाके में बनी मुतासरीन की आवाज़। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम की इमामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, एबटाबाद, मरदान, मालाकंड में भी ज़लज़ला। अटक, मियांवाली, बहावलपुर, मुल्तान, टेक्सला, वाकेड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.9, गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत 14 रुपये, आटे की 10 किलो थैले की कीमत 905 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब हुकूमत के गंदम के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। पीरा को गंदम की ज़हीरांदोज़ी रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़हीरांदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। अमेरिका का झुकाव भारत की बजाय पाकिस्तान की जानिब होने लगा। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट। पाकिस्तान अमेरिका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने अस्करी ताकत के हवाले से अमरीकी सोच बदल दी। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के फ़रोग से मुश्तरका मफादात की हमाहंगी मज़ीद बेहतर हो गई। अमरीका अब भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। भारत का मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार अमरीका के साथ ताल्लुकात में मुस्तकिल बेयकीनी और बिगाड़ पैदा कर रहा है। जिस मुआशरे में सच्चाई खत्म हो जाए तबाह हो जाते हैं। अगर ईमान और ईमानदार जजों को रोल मॉडल बनाया जाता है तो मामलात बेहतर हो जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का सेमिनार से खिताब। कहा कि 77 साल में जो अदलिया ने काम किया वो काबिल फ़ख्र नहीं। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं,
एलीट के असूल हैं, मैंने अल्लाह का नाम लेकर हल्फ लिया है, मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ। हमें स्कूलों में भी सच नहीं पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद पाकिस्तान बनने के साथ ही रख दी गई थी। अगर हम ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर हम सबको धोखा दे रहे हैं। मानी पीटीआई का भांजा शाहरेज कोट लखपत जेल से रिहा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में जमानत मंजूर की थी। जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 1 लाख की जमानती मशरूकों के एवज शेर शाह की जमानत मंजूर की।